السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ گوز سلفی۔ یہ 2023 کا فتنہ کا پارٹ 2 ہے۔ یہ اسلم حضرت بامبے کے رہنے والے ہیں۔ انہوں کیا بولتے ہیں کہ ان کی وائس کو حدیثوں کے دشمن انہوں کیا بولتے ہیں کہ ان کے بات کو کاؤنٹر رکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ حدیث میں ایک بات ہے کہ ایک شخص نہا رہے تھے پانی، تو دوسرے شخص نے دیکھا جب ان کو تو وہ بے ہوش ہو گئے، گر گئے، سمجھا؟ تو اس حدیث سے کیا ثابت کر رہے کہ نظر لگ گئی۔ مرد نے مرد کو دیکھا تو نظر لگ گئی۔ سوچیے آپ، نظر لگنے کے جواب میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ عقل کے میں بیٹھتی گیا بات، سوچیے آپ۔ اور حدیث تو ہے گڑی ہوئی۔ اب یہ سوچتے کہاں سے یہ لوگ کہاں جوڑتے لے جا کے اٹیچ کہاں کرتے؟ سورہ قلم قرآن میں جوڑ دیتے۔ دیکھو حدیث میں آیا تو یہاں قرآن میں بھی ہے نا نظر کا ذکر۔ تو نظر کا ذکر ہے تو کیا بول رہے ہو سورہ قلم آیت 51 میں کہ جب ان کو آیت پڑھ کے سناتے ہیں نبی، جب ان کے سامنے آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو یہ اپنی نظروں سے اپنی نگاہوں سے ایسے گھورتے ہیں جیسے ابھی پسلا دیں، یعنی کہاں نبی کو دھمکی کے طور پہ گھور کے دیکھتے ہیں، یہ مراد ہے۔ وہ اپنی نظروں سے ایسا گھورتے ہیں جیسے یہ حضرت بولتے ہیں جو نظر لگی یا حدیث پیش کرتی ہیں وہ آپ کو حدیث ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3509 کی ہے۔ میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں۔ اور انہوں بولتے ہیں صحابی کی نظر صحابی کو لگتی ہے، لگی گتے کر کو مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ گھڑی ہوئی حدیث کر کو بولتے ہیں۔ لوگوں سن لو جان لو، یہ کتنے یہ دھوکہ دیتے ہیں ادمیان کو، یہ حضرت کتنا دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ صحیح حدیث کو پکڑے کو گھڑی ہوئی حدیث کہتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3509 کی صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے۔ اسے آپ کو گھڑی ہوئی ہے کو ان کو سمجھ میں آیا 1440 سال کے بعد ان کو سمجھ میں آیا۔ معذاللہ ہمارے محدثاں کو سمجھ میں نہیں آیا، اللہ ان کے اوپر رحم کرے۔ اور انہوں سورہ قلم سورہ نمبر 8 آیت نمبر 50.1 کی بات کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ اشارہ دیتا ہے، نظر کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ اور آپ کو قرآن میں آپ کو سورہ یوسف کو سورہ نمبر 12 آیت نمبر 60.7 میں بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یونس علیہ السلام کے پاس ملنے جاتے ہیں تو آپ کو الگ الگ جاور کو بولتے ہیں یعقوب علیہ السلام ان کے بچوں سے کئی کو سب جنے 12 لوگ الگ الگ 12 دروازوں سے جاؤ کرنے کا اشارہ، یہاں بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ تو انہوں نظریت نہیں، یہ سب گھڑے ہوئے حدیثاں کر کو بول رہے تھے آتے ہیں، انہوں آدمیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے دھوکے بازوں سے بچنا۔ اور آپ کو نظر برحق ہے، نظر و برحق ہے، جیسے ابھی پسلا دے، یعنی کام سے روک دیں، قرآن کی بات بیان کرنے سے روک دیں، یہ ہے، سمجھا؟ مطلب یہ ہے کہ روک دیں تو اس سے لے جا کے اٹیچ کر دے تو بولے دیکھو نظروں سے گھورتے ہیں نا تو نظر لگ رہی۔ کیا عقل کدھر رکھتے ہو؟ عقل ہی نہیں ہے، سب گڑی ہوئی بات کو لا کے قرآن میں کوشش کرتے ہیں جوائنٹ کرنے کی، اٹیچ کرنے کی، ملانے کی کوشش۔ اب آپ سورہ حج بھی دیکھو، آپ آیت نمبر 72 جب ان کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے تو یہ اے نبی تمہیں ایسا گھورتے ہیں جیسے ابھی تم پہ حملہ کر دیں۔ ہے گئی نا، کلیئر ہو گئی نا بات کہ نظروں سے گھورنا مطلب غصے میں دیکھنا۔ یہ ہمارے خلاف سب باتیں قرآن کی کر رہا ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف، باپ دادا کے خلاف یہ بول رہا ہے، تو ان کو نظروں سے گھورتے ہیں وہ لوگ۔ غصے میں دیکھتا ہے نا آدمی سب ڈانٹتا ہے، ابھی مارنے کی کوشش میں رہتا ہے تو ایک دم غصے میں دکھتا ہے۔ تو مراد یہ ہے بھائی، عقل میں بیٹھتی نا بات یہ ہے۔ اب اس کو آپ نظر میں جوڑ دو، گھور رہے نظر لگے، یہ آیت میں سورہ قلم کی جوڑ رہے۔ بھائی کدھر ہو، کہاں ہو، کدھر؟ عوام کو بیچاری قرآن پڑھی نہیں، عوام ان کو گمراہ کر رہے، عوام کو گمراہ کر رہے، گڑی گڑی جھوٹی جھوٹی حدیث لا کے، سمجھا؟ سوچیے آپ کیسی بات ہے سب۔ اور پھر اتنی غلط بات ابن ماجہ آپ کھول کے دیکھیے حدیث
उसका फिर क्या बोले उसके बाद, क्या नबी नौजुल्ला नबी ये सब बात बोलेंगे। नबी ने फरमाया हाँ वो आदमी जो गिर गए नजर लग गई उनकी, तो वो आदमी जिसकी नजर लगी उसको मिलाओ, उसके आंख पे पानी डालो, ये सब लिखा है। उसके आंख पे पानी डालो, पानी से मिलाओ और अपना अंडरवेयर तहबन में हाथ डाल के सब धो, ये सब वर्ड है हदीस में, देखो आप। तो ये हज़रत मौलाना सूरह हज की भी जो बोलते हैं आयत वो, उसमें भी आपको नज़र नहीं लगती अगर वो काम भी साबित नहीं होता है। और ये लोग क्या बोलते हैं, जो नज़र नहीं लगती, जो देखता है उसको ही नज़र लगती कहते हैं। तो 1440 को 2 साल के बाद वो इनको समझ में ये तफसीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसील करिए हदीस में इसका ज़िक्र आता है, सही बुखारी में और सही मुस्लिम में। हदीस नंबर सही बुखारी हदीस नंबर 5740 3370 सही मुस्लिम हो 2180 2180 2186 2187 2190 में इतने हदीसा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं बेशक बरहक नज़र है बोलते हैं। तो इन्हों को क्या बोलते हैं, नज़र आपको जो ख़ुद को देखता उनको लगती कहते हैं। सूरह कलम की आयत में इशारा है और हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसील करिए नज़र बरहक है को। तो इन्हों क्या बोलते हैं, नहीं जो नज़र ख़ुद को दिखता है उसको ही लगती, सामने वाले को नहीं लगती। तो सामने वाले को लगती नज़र कर को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं। वो साहबी का ज़िक्र है इब्न माजा में हदीस नंबर 3509 में, जब एक साहबी पानी नहा को उनके घर में ऐसी निकलती हैं तो दूसरे साहबी आती हैं आको उन्होंने क्या कितने खूबसूरत थी तुम्हें अगर बोलती हैं, उन्होंने हाँ गिर जाती हैं साहबी हुआ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलती है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाको देखती हैं तो पूरा वाक़या है हदीस में। तो क्या हुआ तुम नागोवर को बोलते हैं। तो ये हदीस देख लो इब्न माजा में हदीस नंबर 3509 समझ में आता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे सो तफसीर छोड़ा को की तफसीर को इन्हों घड़ी हुई हदीस कहते हैं। 1440 को 2 साल के बाद आपको ये मौलाना नमूना ही नमूना। हाँ, तो ये बात तो इनका क्या है इसमें, एक तो बात तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात करती हैं क्या हदीस के ऊपर, इनका बोलने का मतलब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पानी नहा को वो पानी ले को डालो कहती क्या, वो इलाज के तौर पे को बोला गया को। हाँ, इनको समझ में नहीं आया, इतना जहालतपन है मौलाना को, अल्लाह रहम करे इनके ऊपर। नहाओ सब धो और वही पानी उसके आंख पे छिड़को, जिसकी नजर लगी है वो आदमी को मिलाओ, उसको गुस्ल दो, उसका पानी नापाक ये वो अंडरवेयर में हाथ, सब लिखा है हदीसों में गंदी गंदी बात। वही पानी जिसको नजर लगी जो बेहोश हो गया उसके ऊपर डालो, यह इलाज बता रहे नौजुबिल्ला नबी, ये इलाज बताएंगे। पहली बात नजर लगती आदमी को देख के गिर रहा है, यहाँ तो आप अकल इस्तेमाल करो, है ना अकल, देखो आप ये देखो सामईन, ये हज़रत मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं ऐसा बोलेंगे क्या नबी कर को, इनकी मर्ज़ी से बोलना। हाँ हज़रत मौलाना तुम्हारी मर्ज़ी से नबी आपको इलाज बोलना, हाँ ना कि उनकी मर्ज़ी से उन्होंने बोल दी इलाज। क्या बोलना चाहते हैं तुम्हें, या दिमाग रख को बात करो, इलाज बताइए वो सही हदीस हो, सनद सही है उसकी, उसे पकड़ ले को तुम्हें घड़ी हुई हदीस कहते हैं। अकल नहीं है क्या आते हैं, तुम्हारी अकल कहाँ गई है, वो तुम्हारी अकल कहाँ गई है वो कहता हूँ मैं तुम्हें। बोले सर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो करेक्ट हो, नहीं कर तो रांगो घड़ी हुई है। क्या बोलना चाहते हैं तुम्हें, हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने ऐसा इलाज बताती हैं क्या कर, तो तुम्हारे दिमाग के तुम्हारे जहन के हिसाब से बोल रहा हूँ इलाज। डॉक्टर के नहीं जाती तुम्हें, डॉक्टर नहीं जाओ, डॉक्टर बोला सो दवे लेती तुम्हें,
नहीं तुम्हें बोल को डॉक्टर को ये मीठी दवा दो, ये खारी दवा नको कर को बोल को दवा मंगा ला लेती तुम्हें बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर बोले इस तरह सुइयाँ दला लगो ठुसा लगो आना तुम्हें, हाँ ना कि मुझे सुई नको। अब हम डॉक्टर ने कहा तो सुई डाल रहा कर को बोले तो जल्दी जाती हैं टिकट कटा ले को, क्यों भी आधी उम्र के ऊपर होगा। हाँ इसके वास्ते मैं आपको मशवरा देता हूँ, बाज आ जाओ हदीसों को, तुम ना को हदीसा समझ में आए नहीं तो इसके पहले बयान में भी मैं बोल रहा हूँ खामोशी इख्तियार करो। तुम ना को नहीं समझ में आया तो खामोशी इख्तियार करो, तजपन की ये घड़ी हुई ये हदीस वो घड़ी हुई हदीस बुखारी की घड़ी हुई, मुस्लिम की घड़ी हुई, तिरमिज़ी की घड़ी हुई, घड़े हुए हदीसा को घड़ी हुए हदीसा कर को साबित कर डालिए, अलग कर डालिए। जो हमारे मुहद्दिसीन जो ज़ईफ़ हदीसा है उसे ज़ईफ़ कर को लिख डालें, जो सही है सनत है सही सनत के साथ है वो एक एक आयत तो एक एक हिसाब से लिखो, हिसाब से रखें जमा करें हदीसा। शुक्र गुजारो, अतीउल्लाह अती रसूल को मत छोड़ो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी कुरान और हदीस को अपनी दांतों की जड़ों से दवा को पकड़ो, तुम्हें गुमराह नहीं होते यार को। तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा लिए और उससे कुरान ले लो को मैं चल दूँगा तहीं। तुम्हारा ये 2023 का फितने का जवाब है ये पार्ट 2। आगे बोलो क्या बकतेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है चलते हैं परेड करते हैं, सब एक से खूबसूरत औरत, एक से खूबसूरत, लाखों लोग देख रहे हैं वहां पे बैठ के, हजारों लाखों टीवी पे देख रहे हैं उनको लाइव। एक भी औरत नहीं गिरती, नजर लगती, खूबसूरत खूबसूरत वर्ल्ड की ब्यूटी क्वीन आते, यानी जो जो बहुत खूबसूरत होते वो आते, गिर रहे, नजर लग रही किसी को, किधर हो क्या हम जाहिल अवाम को बेचारी पड़ी नहीं कुरान, अकल इस्तेमाल नहीं, उसको तुम गुमराह करते हो, नजर लगे। तुम नबी नौजुबिल्ला ये बातें बोले, इसका पानी उस पर डालो, अभी मैं मुंह धोऊं तो ऐसा हाथ मसलू और आप पे छिड़कू ऐसा, खाली वजू करके ऐसा हाथ मुंह धोऊं और छिड़कू ऐसा, खाली ऐसे ही छिड़कू, कितना गुस्सा आएगा। खाली मुंह का और हाथ का पानी ऐसा छिड़कू किसी के मुंह पे तो क्या चिड़ नहीं आएगी। तो नबी नौजुबिल्ला ये तालीम दे रहे। देखो आप इब्ने माजा अंदर एक एक वर्ड पढ़ो, ना पाए की बदन का पानी उसके आंख पर डालो, नौजुबिल्ला नबी पे कितने जालिम है, ऐसी गड़ी गड़ी बातें नबी पे मंसूब करते हैं। पाक की तहारत का नबी तालीम देने वाले, और नबी यही सब है हदीसों में, कीचड़ उछालना पैगंबरों पे साहबों पे, हदीसों में यही सब है, समझ रहे आप। तो आप सोच कहाँ किधर गिर रहे, यूरोपियन में, यूरोप में कितने खूबसूरत बच्चे एक से एक गोद में लेके घूम रहे, नजर लग रही, कोई गिर रहा, कोई बीमार हो रहा, उल्टी हो रही, किसी को नजर लग रही, एक से एक खूबसूरत औरत, एक से एक खूबसूरत मर्द घूम रहे रास्ते पे, नजर कहाँ लग रही किसको। हीरो हीरोइन एक से एक लाखों करोड़ों लोग देख रहे, नजर लग रही, गिर रहे, गिर जाना चाहिए लोगों को तो, चलते चलते शूटिंग करते करते गिर जाना चाहिए, नजर लग गई। क्या है ये सब फालतू बातें, या ये दीन के अंदर घुसेड़ के बोले नजर लगती। आली मुफ्ती हर फिरका मानता है, बरेली देवबंदी अहले हदीस, ये तो सबसे बड़े हदीस की डिफेंड करने वाली गुरु है, सबसे बड़ा डिफेंड करते हैं ये लोग। और बुखारी को तो बोले आंख बंद करके ले लो, बुखारी को एक भी हदीस गलत नहीं बुखारी में, जैसे कुरान वैसे बुखारी, नौजुबिल्लाह। ऐसे बयान मत सुनाओ अहले हदीस आलिम लोग से। सोचिए आप, ये हदीस है, नजर लगी, अकल में बैठती क्या बात, लग रही क्या हीरो हीरोइन ब्यूटी, इसको उसको किसी को नजर नहीं लग रही, मर्द औरत को देख रहा नहीं लग रही। अरे कुरान से साबित है नहीं लगती नजर। यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ खोल के देखो, बहुत खूबसूरत थे, तो औरतों को जब बुलाया गया कि भाई देखो इनको, तो जब औरत ने यूसुफ को देखे तो अपने हाथ काट लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो ये हजरत तो बोलते हैं जो चुपके छिनके तो कितना गुस्सा आता वगैरह वगैरह को बोलते हैं, पानी छिनके तो कितना गुस्सा आता, जो पानी नहला को उंडले तो कैसा आता, गुस्सा आता नहीं क्या को बोलते हैं।
सही छो तुम्हें गच्चू बैठ कर तो तुम्हारा डॉक्टर आगो सुई चुवा रहा तो तुम्हारा गुस्सा आता सोचो तुम्हें बीमार होए तो आगो डॉक्टर ऑपरेशन करा तो भी तुम्हारा गुस्सा आता नहीं ये बात तुम्हारा मालूम ही नहीं समझ में ही समझता मैं तुम्हारा बात हो तुम्हें गच्चू बैठ कर तो आगो एक टैनिक का ढक्कन में का एक ड्रॉप डाले तो भी तुम्हारे मुंह में गुस्सा आता तुम्हारा कहीं डालता है चुपके में जहर को वो बीमार है तुमको तुमने ऑपरेशन काट को रख डालें जाए तब भी तुम्हारा गुस्सा आता नहीं हाँ करूँ और को खोले को सोया नहीं हाँ ऐसा तुम्हारा को इलाज क्या है नहीं इलाज क्या है तुम्हारा को मालूम नहीं तुम्हारा बकवास बल्ला का होता है। और आपको मैं इसके पहले भी बोली हूँ बयान में तुम्हें हदीसा तुम ना समझ में नहीं तो खामोशी इख्तियार करो ना कि जहन्नम को हदीसा के ऊपर वो झूठी ये वो बोल को जहन्नम का रास्ता मत खोलो क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं सही बुखारी हदीस नंबर 106-109 में जानते बूझते मेरे ऊपर झूठ कोई बांधा उन्हें उसका ठिकाना जहन्नम है यार को। तो तुम्हें 2023 का फितना बन को लोगों को गुमराह करते हैं ऐसा करना अच्छी बात नहीं। डेली एक वीडियो आती है तुम्हारी देखता हूँ मैं इंशाल्लाह ये सीरीज़ चलती है कंटिन्यू और यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या करने आई तुम्हें इंशाल्लाह उसका भी जवाब दे तुम्हें। खूबसूरत उनको नजर लगना चाहिए ना औरतें उनको देख के हाथ में छुरी और फल काट रहे थे जो भी काट रहे हो देखने में हाथ हिल गया इधर उधर हाथ कट गया औरत के। सूरह यूसुफ खोल के देखो ये बात लिखी कि नहीं अल्लाह बताया है बात क्या औरतों ने अपने हाथ काट लिए यूसुफ को देखते बहुत खूबसूरत थे यूसुफ अलैहि। तो यहाँ पता क्या चल रहा है कुरान की यह बात से कि जिसको देखा जाता है उसको नजर नहीं लगती जो लोग देखते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। यूसुफ को नजर नहीं लगी देखने वाले लोग को इफेक्ट हो गया। जैसे हम देखते किसी औरत को अब अपनी बीवी से खूबसूरत है या बहुत खूबसूरत है तो वो ऐसा होता है ना अरे बहुत खूबसूरत है काश मेरी बीवी होती तो अपने पे इफेक्ट होता वो औरत को नहीं होता कुछ। और हदीस क्या बोल रही है बहुत खूबसूरत थे जो नहा रहे थे उनको एक ने शख्स ने देखा तो वो देखो सामाइन इनका जहालतपन देखो इनको समझ में हदीसा आते नहीं कुरान के आयता आते नहीं तो हदीसा को घड़ी हुई बोलाते हैं क्योंकि कुरान को घड़ी हुई बोलते नहीं माज़अल्लाह नो। हाँ कई को इनको अच्छा मालूम उनको कुफरिया में चल जाती हैं कुरान के ऊपर में ऊपर को बोला तो भी कर को इसलिए हदीसों के दुश्मन बन को इन हदीसा के ऊपर उंगलियाँ उठाते हैं। तो कुरान की आयत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बोलती है वह तो वो बहुत बड़ा वाक़या है वो जो माँ साहब वो बोलती हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने लगा और को काटने अंगलियाँ उन्होंने जो औरतें हैं वो अंगलियाँ काट लेती हैं तो उनको उन्होंने नज़र की नीयत से नहीं देखते हैं। सो हाँ तुम लोगों को समझ में आ सो ऐसा तुम्हें क्या बोलते हैं जो देखने वाले को खुद अपने ऊपर इफेक्ट पड़ता सामने वाले को क्या भी होता नहीं कहते हैं। तो उन्होंने देखे सो नज़र की नीयत से नहीं हाँ मौलाना तुम्हारी समझ की अक़ल की समझ देखो हाँ कितनी है हाँ हवस की नहीं नीयत से वो देखे सो ना अब्बा कितने खूबसूरत हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम कर को इसलिए उन्होंने फल्ला की जगह उंगलियाँ काट ले सो वो तुम्हारी समझ हो इसलिए दीन में तुम्हारी समझ डालना छोड़ा लो मैं तुम लोगों को राय देता हूँ। ऐसा बोले जाएगा तो उनका बहस बल्ला का है इनका जहालतपन के बातें बल्ला की हैं वीडियो लंबी हो जाती है ये पार्ट 2 है इंशाल्लाह ये सीरीज़ हो जाती है इनके बहुत से ही ऐसे जहालतपन के वीडियो इंशाल्लाह इसे शेयर करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मैं कभी बोलता नहीं कहीं को रहेगा तो ये फितने को दबाना ज़रूरी है। इनसे डायरेक्ट मैं फ़ोन में भी बात कराता हूँ तो उन लोगों को बकवासबाजी उनका बयान बोलना छोड़ते नहीं सामने वाले की सुनते नहीं। और मैं व्हाट्सअप में भी इनको बात करने की कोशिश करी हो मेरे वैसा डाला तो सुन लेती जवाब देते नहीं उन्होंने मुनाफिकत दिखाती हैं इसलिए मैं इनका फ़ोन नंबर भी डालता हूँ वीडियो में चाहे तो इनका फ़ोन नंबर भी मैं डालता हूँ चाहे तो वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।